एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक माता जीवन कौर जी पिछले दिनी अपने सवासां ਦੀ पूंजी ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉੜਮੁੜ ਟਾਡਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਪਦੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੁਲਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1921 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਗ ਵਸਦਾ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕਮੀ ਆਈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। माता जी अंतिम अरदास आओ अपन सर जब मिलकर ईश्वर का गान करने ऊपर अरदास के मन जाते हुए अवसर
देवो सजन हसी सड़िया देवो सजन हसी सड़िया जो वैसा सिरों
सब पर
नानक
दसरे मन गाए जो संगी है तेरो दसरे मन गाए जो संगी है तेरो औसर भी तेरो जात है औसर भी तेरो जात है कहे मान ले मेरो कहे मान ले मेरो हर दस दे मन गाए जो संगी है तेरो हर दस दे मन गाए जो संगी है तेरो कितना समा किसी ने आना इस धरती पे कदों जाना है, ये केवल अकाल पुरख वाहिगुरु के हाथ में है। धन गुरु होंगे साहब के वचन ने रात कारण धन संची है भलके चलन होए नानक नाम न चले फिर पछतावा। तुसी एक रात ठहरना होवे समान बहुता इकट्ठा कर लीए, जो सवेरे तुरना होवे तो समान हो चुकिया ना जाए तो सवेरे मनुख पछताउंदा है सारी रात समान इकट्ठे करते रहे हुण इत्थे छड्ड के जाना पै रहा है, फिर पल्ले केवल पछतावा होता है। सानू एक रात मिली है, रात किड्डी को है, किसी की गर्भ अवस्था की रात है, कहते जन्म सार मौत हो गई, किसी की रात 10 की है, किसी की 20 की है, कोई 30 है, कोई 50 है, कोई 70 है तो कोई 100 है। बस एडी की लंबी रात है, कोई विरला है जो 100 को हाथ लाता है। एडी की लंबी रात है, इस रात में की इकट्ठा करना है, परोपकार, सेवा, सिमरन, ये इकट्ठियां करने वाली चीज़ां ने जिहड़ियां नाल जांदियां ने। तुसीं वेखोगे दुनिया के बड़े शहरों में जाओगे तो लाहौर वर्गे शहर जाके वेखोगे, दिल्ली जाके वेखोगे एडे बड़े महल बने हुए हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 बैडरूम बने हुए हैं, कमरे ने, पर बोर्ड के टुकड़ उगे हुए हैं, उत्थे रहने वाले कितने चले गए।
कोई नज़र नहीं आता। तुसीं हैरान हो जाओगे वो कित्थे गए, कित्थे किन्नी चहल पहल होएगी, उत्थे कुछ नहीं मिलता। केवल बोर्ड के कुकड़ उगे हुए ने तो दरवाजे वेख के भी भुख लैंदी है कि इन्ने सोहणे दरवाजे हैं। मेरा कहने तो भाव है कि जिन्हां ने परोपकार किया, सेवा की, सिमरन की, अज सरकार जो माता जीवन कौर जी को तुसीं याद कर रहे हो। मैं कई बार हैरान होना, उनका सरदापुरी का परिवार से जिथे जन्म होया, सरदापुरी का परिवार से जिथे ब्याह के आए तो भैड़ा 47 आ गया, कखों हौले करके रख दिता, कुछ पल्ले ना रहा, उजड़ के सारा परिवार इत्थे आ गया। सरदार चन्नन सिंह जी होरी इस पिंड आ गया। मैं एक बेनती करा आप जी को, कोई पता नहीं समय का गेड़ किहो जाए। जिन्होंने भैड़ा 84 वेख्या उन्होंने कोई पूछ के वेखो की हुंदा है हालात, किवें पैरों ते खड़ना हुंदा। ते कोई सरदार चन्नन सिंह जदों ना कदे मैं कदे पूछना उन्होंने, क्योंकि थोड़ा समय पहले धरती तो गए ने, उन्होंने कहना पुत्रा बहुत औखे पैर लगे सन। अज उन्होंने योग सपुत्र सरदार अरविंदर सिंह जी साडे इत्थों के हल्का इंचार्ज ने, श्रोमणी अकाली दल के नाल कार्यशील ने, बड़े भाई साहब डॉक्टर जसविंदर सिंह जी कुलार, छोटे साहब सुदर्शन सिंह जी और पोतरे डॉक्टर सुखबीर सिंह जी कुलार साहब, कमलजीत सिंह जी कुलार ते हरदीप सिंह कुलार, समुचा सारा परिवार अज माता जी की याद में बैठा है। तुसीं असीं सारे माता जी को अपनी अकीदत, श्रद्धा ते प्यार भेंट करना है। बड़ा ही रस करना कीर्तन सचखंड श्री हरमंदिर साहब जी की हजूरी लागी भाई साहब रविंदर सिंह जी आप जी समर्पण करवा रहे सन, गुरु चरणों नाल जोड़ रहे सन। मैं आप जी को बेनती कर रहा सा, मनुष्य का जीवन थोड़ा जिहा है, बहुता लंबा नहीं, और इस जीवन में माता जी ने रज के जस खटिया, रज के संगत का प्यार दिया। जे कोई लोड़वंद आया उसनूं कदे इस दर तो नहीं मुड़िया। वह फल है कि अज बच्चे सारे बड़े सत्कारयोग और सारी सत्कार जिन्ना संगत ने दिता उन्होंने इसे करके मिलया कि उन्होंने बड़े कारजा में हमेशा वो भी कार्यशील रहते हैं। माता जी 100 साल लंबा जीवन जी के गए हैं, 1921 तो 2021, 100 साल लंबा जीवन कोई छोटा जीवन नहीं होंदा, पर इस जीवन में जस के मान खटिया, मुड़ पैर लाए और पैर लाने की सख्त मेहनत की, और उस मेहनत का सिटा अज समुचा साडा पंथ हाजिर होया। सतगुरु ने नजरे रहमत की है, बख्शिश की है। तुसीं सारे ही जिथे अफसोस प्रगट करने आए, मैं कला कला ना लवांगा, सारे सज्जन अफसोस नहीं आते रहे हो। अज हुणे भोग तो बाद सतगुरु ने रहमत की, तुसीं कीर्तन भी सरवण किया। संगत में बड़ियां सत्कारत हस्तियां बैठियां ने। मैं विशेष करके बेनती करांगा कि संगत में मानयोग सिंह साहब, ज्ञानी रणधीर सिंह जी, जहदर तक श्री केसगढ़ साहब, जितों सानू दस्तारां मिलियां, जितों सानू जीवन मिलिया, उस तक के जथेदार ने, और जितों सिक्खी साडे झोली में पई है, उस तक तो चेचे तौर पर हाजिर हुए ने। जी आया श्रीमद संत बाबा सेवा सिंह जी होरां रामपुर खेड़े वाले, क्योंकि बाबा हरनाम सिंह जी ने बड़ियां असीसां दित्तियां इस परिवार को, बड़े महापुरुषों ने, खास करके माता जी और सतचरण सिंह जी होरी बड़ी श्रद्धा से प्यार रखते सन। सत्कारयोग बाबा निहाल सिंह जी हरियां बेलों वाले, बड़ी सत्कार जथेबंदी ऐसी कौम की हुणे हुणे हाजिर हुए ने। और सत्कारयोग महंत तेजा सिंह जी खुडे वाले, निर्मले महापुरुषों में विद्वानों में उन्होंने नाम शुमार है। श्रीमद संत बाबा हरचंद सिंह जी खालसा रमदासपुर वाले, एक इस इलाके की बड़ी प्यारी शख्सियत, धार्मिक हस्ती श्रीमद संत बाबा गुरदयाल सिंह जी टांडे वाले, जिन्होंने सारे तुसीं सत्कार देने हो, मान देने हो। श्रीमद बाबा राम सिंह जी समाधा वाले, सतकारयोग बाबा हरदेव सिंह जी तलवंडी हराइयां वाले, सतकारयोग बाबा बलवीर सिंह जी बिरदाश्रम हरियाणे वाले, सतकारयोग बाबा हरप्रीत सिंह जी गुरुद्वारा टाली साहब मूलका तो, और सतकारयोग बाबा सरवर सिंह जी, इन्होंने सारिया आईया हस्तियों को सत्कार देना है। मैं बेनती करांगा सब तो पहले दो धार्मिक शख्सियतां आपके दर्शन करनगियां, उन्होंने तो बाद साडे विच उचेचे तौर पर मानयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब मानयोग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब हाजिर हुए हैं, और साडे डिप्टी CM रहे ने लंबा समा,
और लखते जिगर ने मानयोग सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब के, जिन्होंने पंजाब की बड़ी सेवा की और 5 बार इस पंजाब के मुख्य मंत्री रहे, वो भी हाजिर हुए ने। उन्होंने भी जी आया का सत्कार देना है और कुछ शख्सियतां असीं बुलावांगे। उन्होंने तो बाद मैं सब तो पहले बेनती करांगा सत्कार जो मानयोग सर जसवीर सिंह जी गढ़ी प्रधान पंजाब DSP, मैं ये सारे नाम लैने सन, वो उन्होंने समझा कि शायद नाम भुल गया। ना तो मेरे को सारे ही ने, मैं सारे के बार बार नाम आखू, क्योंकि एक बार जो नाम गिनते तो बहुत सारी संगत इस तरह की होंगी कि मेरा नाम आ गया हम चलते हैं। मेरा एक सत्कार नाल बेनती करांगा ना सारिया जिन्नियां राजनीतिक हस्तियां आईयां ने सारे के बड़े अदब से सत्कार नाल लवांगे ना। मैं बेनती करांगा धार्मिक हस्तियां विचों सत्कार जो सारे वालों ही बाबा गुरदयाल सिंह जी टांडे वाले, उस तो बाद सिंह साहब, केवल 2-2 4-4 मिनट रही, क्योंकि बहुत लंबा समागम हो जाएगा, गर्मी भी ज़्यादा है। बड़े अदब के नाम बेनती करांगा क्योंकि इस इलाके की बड़ी प्यारी हस्ती ने और इस परिवार के नाल बड़ा लंबे समय तो वाबस्ता ने। मैं बेनती करांगा सत्कार बाबा गुरदयाल सिंह जी टांडे वाले, जिन्होंने कीर्तन की दुनिया में भी बड़ा मान लिया और संगत भी बड़ा प्यार कर दिया है और सेवावां भी, खास करके सेहत सेवावां में बहुत बड़ा योगदान है। मैं बड़े आदर नाल बेनती कर रहा उन्होंने, वो अपने वालों अकीदत श्रद्धा के फुल सत्कार के बाद जीवन को अपनी भेंट करेंगे। बड़िया महान हस्तियां पतवंत सज्जन सिंह साहब यानी रघुवीर सिंह जी, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल के बहुत सारे बहुत सज्जन इस अंतिम अरदास के प्रति शामिल हुए हैं। दिल मालिक कहते हैं बहुत हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसी का हुक्म महबूब संभालो। जिन्होंने बंदगी की होवे वो डट के कहते हम असी दोबारा आना नहीं, और हम काहे आवेंगे, हम की लोड़ आएंगे। गुलाब साहब मैंने कुछ दिन पहले कह रहे थे माता जी रोज 2 सुखमनी साहब जी के पाठ करते थे, जितने उनको बिगाया। कहते एक दिन मैं पूछा कि माता जी एक काफ़ी नहीं, कहते एक तो जिन्नी बाणी पढ़ ली गई उन्नी ही घट है। सो मेरे वालों स्थान वालों माता जी को कोटन कोट प्रणाम है, जिन्होंने श्वास श्वास हरि सिमरन करके इस संसार को विदा होए ने, वो तो सदा मुक्त होंगे ने। अरदास तो असीं जरूर करते हैं कि उन्होंने चरणों में निवास बख्शें, पर सिख के जब सिमरन में बहता तो गुरु नानक की गोद में बैठ जाता। आखो सतनाम श्री बहुता समा न लेंदे हुए इन्ने ही शब्दों में माता जी को श्रद्धांजलि देते हुए फतेह सांझी करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मानयोग सिंह साहब जैसे ज्ञानी रघुवीर सिंह जी बख्शी केसगढ़ सबको उचित तौर पर हाजिर हुए हैं, बड़े सत्कार नाल बेनती कर रहे हैं, आपको दर्शन कर रहे हैं। मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी जगत बख्शी केसगढ़ साहब। सतगुरु साधु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन कीर्तन जिंदगी में बैठे समूह गुरु सवारी सत्संगी जनों, गुरु बख्शी फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सारे साढ़े बहुत ही सम्मानयोग माता जीवन कौर जी, सुपत्नी गुरप्रवासी सरदार चरण सिंह जी, जो कि पिछले दिनी स्वासा की पूंजी को खो करके इस पानी संसार को कूच कर गए सन। तिन्हां दे वित तिन्हां दे सहयोग सपुत्र सरदार कुलविंदर सिंह जी रसूलपुर हल्का इंचार्ज श्रोमणी अकाली दल बादल, डॉक्टर जसविंदर सिंह जी कुलार, सुखदर्शन सिंह जी कुलार, डॉक्टर सुखबीर सिंह कुलार, सरदार अमरजीत सिंह जी कुलार रसूलपुर और समूचे कुलार परिवार ने
अपने ग्रह विखे गुरबाणी के प्रवाह चलाए और संपूर्णता तो बाद पंडाल सजया। सजे हुए पंडाल अंदर गुरबाणी का कीर्तन होया और आप सारे माता जी को अपनी अकीदत के फुल श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर भगवान सिंह जौहर दस रहे सन कि माता जी बहुत ही नेक सुभाव गुरमुख रूह संत सेवी संत संगी और दुखियां लोड़वंदां की सहायता करने वाले बाणी पढ़ने वाले और तकरीबन 100 साल की यात्रा संसार के भोग के इस पानी संसार को गए ने और समुचे पुलार परिवार ने माता जीवन कौर जी की निੱਘੀ छां माणी है और उन्होंने छत्र छाया हेठ इस पुलार परिवार ने अपना जीवन बतीत किया है, उन्होंने संगत की है। पर गुरमुख को एक साखी इतिहास मिलती है कि मां ना जपण वाली होवे, बंदगी करने वाली होवे और पुत्र मां की सेवा करने वाले होण ते उन्हां नूं परमात्मा की बारगाह दे विच थां मिलती है। एक जिक्र मिलता है कि हजरत मूसा ना इबादत करदे होया रोजाना ही उस परवतगार की बारगाह में जाया करते सन, दर्शन करते सन। कहते एक दिन जदों इबादत करदे होया उस मालिक की बारगाह में गए, खुदा कहन लगे कि मूसा तेरे वास्ते बहुत सुंदर महल असीं तैयार कर रहे हैं। कहते हजरत मूसा कहन लगे कि मैनूं दिखाओ कि मेरे वास्ते कितने महल तैयार हो रहा है। कहते खुदा ने हजरत मूसा को नाल लिया, कितने महल तैयार हो रहा सी ना, थां जाके दिखाई, महल दिखाया हजरत मूसा जी कि महल तुहाडे वास्ते तैयार हो रहा है, पर तुहाडे महल के बराबर एक होर महल बनता है। हजरत मूसा कहन लगे वो महल किहदा है? एक धरती से एक कसाई का काम करने वाला लड़का है, मीट बेचता है, मांस बेचता है, ਉਹਦੇ वास्ते एक महल बन गया। हजरत मूसा हैरान होकर कहन लगे कि बंदगी करने वालियां दे, सेवा करने वालियां दे, सिमरन करने वालियां दे, नेकी करने वालियां दे महल तो बन सकते हैं, लेकिन जिहड़ा पाप करता है ਉਹਦਾ महल मेरे बराबर खुदावंद मैनूं समझ नहीं आई कि ये क्यों हो रहा है। कहते कि खुदा ने हजरत मूसा नूं उस लड़के की जो कसाई का काम करता सी ना, उसकी मां दिखाई जिहड़ी अरदासां कर रही सी कि ऐ खुदावंद करीम मेरे बच्चे का इकबाल हजरत मूसा की तरह बुलंद हो, मेरे बच्चे को तेरी बारगाह हाँ मिले। हजरत मूसा हैरान होकर खुदा पूछन लगे कि ऐ खुदावंद करीम, कि मां अपने बच्चे वास्ते इबादत कर रही है, अरदास कर रही है, पर इसका बच्चा तो कसाई है, कसाई का काम करता है। खुदा कहन लगे हजरत मूसा, इसका बच्चा बेशक कसाई का काम करता है, पर यह अपनी मां की इन्नी कुछ सेवा करता है कि मां की अरदास की हुई साडी दरगाह तक पहुंची है, साडी बारगाह तक पहुंची है। असीं उस मां दियां असीसां सुन के, मां दियां अरदासां सुन के उस कसाई लड़के वास्ते तेरे बराबर एक महल तैयार कर रहे हैं। मेरे कहने तो भाव कि मां इबादत करने वाली होवे, मां बंदगी करने वाली होवे, मां नेक रूह होवे, मां सेवा करने वाली होवे, सिमरन करने वाली होवे, उस मां की की हुई सेवा, उस मां की हुई संगत करने वाले जिहड़े बच्चे ने, परिवार है,
रिश्तेदार ने, सगे संबंधी ने, उन्होंने भी परमात्मा की दरगाह में थां जरूर मिलती है। अज बहुत एक नेक इंसान गुरमुख रूह माता जीवन कौर जी जो स्वासा की पूंजी को भोगते हुए इस पानी संसार को कूच कर गए हैं, वो साडे विच नहीं रहे। गुरु चरणों के विच अरदास की गई है कि संपत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियाँ जो हो गए सानू सुमेल। गुरु चरणों में अरदास है कि सतगुरु विछड़ी हुई आत्मा को सदीप काल अपने चरणों में भेंटा बख्शिश कर और पिछों माता जी के समुचे परिवार को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को खाना मिठा करके मनने का बल बख्शिश कर। इस परिवार धर्म में, समाज में, परिवार में, राजनीति में सतगुरु की इज्जत पर उन्नति बुलंदी बख्शिश कर। फुल चुकी के बाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, सतगुरु जी के वचन हैं जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग। सत्कारयोग माता जी, माता जीवन कौर जी अपने नाम को तो सफल किया ही है, अपनी जीवन यात्रा भी सफल करके सतगुरु जी के चरणों में बराजे हैं। ये शरीर ठीक है, शरीर करके कोई सदा रहा नहीं, ना ही किसी ने रहना है। बड़े बड़े राजे महाराजे, रथी अधरथी महारथी, सूरवीर बहादुर लिखी पुरी महापुरुष संसार से आए, आप अपनी ड्यूटी भुगता के वापस चले गए। कहते जी आप बदल करते हैं। गुरु साहब जी की बहुत कृपा इस परिवार से, इस गुरसिख से। साध संगत जी असल कृपा की निशानी की है। सतगुरु जी ने पूछा गुरसिखा ने, पातशाह जी जिस गुरसिख से तुम पूर्ण प्रसन्न होवो, 100% खुश होवो, उन्होंने की बख्शिश करते हो? तो सतगुरु कलगीधर पिता जी ने फरमाया, कह लगे गुरसिखो उन्होंने असी गुरसिखी दिंदे, अमन की दात बख्शिश करते हैं, सेवा के सिमरन की दात बख्शिश करते। इस परिवार से पूर्ण महापुरुष पवित्र आत्मा जो साढ़े दुआरे के ही नहीं सारे पंथ के थंब सन, जिन्होंने साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को सही मैंने प्रगट गुरु की देह समझ के सत्कार किया, सेवा की, गुरु साहब जी का हुक्म मनिया। अपने सारे ही प्रेमियों साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों नाल जोड़िया। सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले, उन्होंने इस इलाके से इन्ना सिक्खी का बीज बीजा। अज भी जिधर देखते हाँ उन्होंने परिवारों अंदर जोड़े परिवार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों का इन्होंने जोड़िया सी, उस उन्होंने परिवारों अंदर गुरु की सिक्खी का बूटा प्रफुल्लित हो रहा है, खुशबूहा बन रहा है। चले जाना जदों विछोड़ा होता उदासी होती, जदों मलाप होता प्रसन्नता होती है। माता जी के चले जाने श्रीमान सरदार अजविंदर सिंह जी, सरदार सुखदर्शन सिंह जी, सारे परिवार को ही घाटा नहीं पिया। समुचे खालसे पंथ को सानू सारिया को एक नाम पूरा होने वाला घाटा पिया है, क्योंकि मां की तो सदा लोड़ होती। जे बच्चे ने कुछ लेना हो, कोई गल बनानी हो, जे पिता जी ना मनन तो उन्होंने यह पता होता माता जी को तो मैं मना ही लेना, जो मैंने चाहिए मैं ना लै ही लेना। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पहला माता का नाम लिखे। जब सतगुरु जी प्रबंधन कर लगे तो गुरुदेव सतगुरु जी ने पहला लिखा गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। हरेक गुरु की बाणी की पंक्ति के दो अर्थ हैं, एक करीब है, एक बाहरला। बाहरला अर्थ की है
माता ही गुरु है, पिता ही गुरु है, गुरु ही परमेश्वर है। दूसरा अर्थ गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही परमेश्वर है। माता जी ने सफल जीवन यात्रा की निशानी की है। उन्होंने सफल जीवन यात्रा के सतगुरु की कृपा की निशानी की है। वो गुरु साहब जी ने बख्शिश किए हुए संस्कार, सिखी ने संस्कार, महापुरुषों ने जिहड़े संस्कार बख्शिश किए सन, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को देके सफल 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 भई यात्रा आवन जान रहे मिटे सादा। सतगुरु जी कृपा कर, परिवार के शीश ते मेरे पर हाथ रखन, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भाणा मनन का बल प्रदान कर। खालसे पंथ की चढ़ती कला हो गए, खालसे पंथ के अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह एकता इतफाक अगलनदायिया बख्शिश कर। इन्हें ही शब्दों का अरदास आपकी पासों खेमा का जात है। समूह निहंग सिंह जथेबंदियां वालों जिन्हें महापुरुष विराजमान हैं सतगुरु जी के हजूरी अंदर, मैं तो सारिਆਂ नालों छोटा हाँ, सारिਆਂ वालों माता जी को श्रद्धा के फुल अर्पण करता होया फतेह अर्ज करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। माता जीवन कौर जी जिन्होंने सरकार भेंट कर ली, आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में जुड़ के बैठे आ। बहुत ही महान मां सी, खुशकिस्मत मां सी। वैसे तो हर मां ही महान होंदी आ, पर ਜਿਹੜੀਆਂ मावां अपने पुत्र ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ घर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, हर समाज में विचरण वाला व्यक्ति अज माता जी ने गुणगान गा रहा, क्योंकि माता जीवन कौर जी ने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी, प्रेरणा दी, उसे असीं मान कर सकते हैं, उसे फख्र कर सकते हैं। वैसे तो असीं कहने कि जिहड़ी मां पुत धी संतान छड्ड के जावे, बल्कि कई तो समाज कहने जेडे दोते दोतियां वालियां पड़ोते वालियां मावां जांदियां ने, कहने वो मावां नूं धर्मराज अगे सोने की पौड़ी दिंदा। पता नहीं दिंदा कि नहीं दिंदा, किसी नहीं देखा, पर आप जरूर देखा 5-5, 6-6, 7-7 पुत्तां दीयां मावां सड़कों से रोटियां आपां देखियां। वे की करनगे संतान? कई बड़े बड़े धनाड़ पैसे वाले लोगों दीयां मावां सड़कों से रोटियां देखिया ने, की करनगियां पैसे। असली खुशकिस्मत माँ बाप वो हुंदा दो तरह का, एक तो जिहदी बुढ़ेपे वेले सेवा होवे। माता जीवन कौर जी ने पूरी 1 सदी अपने पिंड से हंडाई और संसार में विचरे, और आखिरी समय दे पुत्र धियां ने, नूह राणियां ने, दोते दोतियां ने, बच्चों ने जो सेवा की बुढ़ापे, उसका हर बंदा जिक्र कर रहा, प्रशंसा कर रहा। इस पक्षों भी महान थे। दूसरे जिस माँ बाप के बच्चे पूरी विचारधारा, उसका सभ्याचार, उसकी सोच मुताबिक चलन, वो आखिरी महीने में माँ बाप खुशकिस्मत होता। मैं USA गया, एक बहुत बड़ा तगड़ा परिवार से, रात को खाना खाने तो बाद मैं कहा तुम बड़े खुशकिस्मत हो। एक भाई बैठी कहती भाई साढ़े तो बदकिस्मत का कोई बंदा ही नहीं हो सकता। मैं क्या की गल माता जी, एडे बड़े मुल्क च बैठे हो, सारा परिवार बैठा, तुम बदकिस्मत किवें हो गए? पहला बोली ना, मैं क्या पुछता लीए, सारा परिवार इतने बैठा, लोग तो पैसे दे के जाने बाहर। ते माता कहने लगी वो मेरा दोता बैठा, ना मामी का पता, ना नानी का पता, ना भूआ का पता, वो बैठा पोता मेरा, ना चाची का पता, ना श्री गुरु ग्रंथ साहब वाले को जानते हैं, ना गुरुआं वाले जानते हैं। की करांगे असीं पैसे? तो आखिरी महीने में मैं कह सकता कि माँ बाप वो खुशकिस्मत रहे जिन्हों के संतान उन्होंने शोभा सत्कार मान घट के दवे।
देश की आज़ादी के बंटवारे वेले साडे स्वर्गीय बापू जी साड जनरल सिंह होरां ने और माता जीवन कौर ने होर लोगों वांग दर्द वंडाए, दुख वंडाए, जमीनां साडियां वंडियां गईयां, पानी साडा वंडिया गया, धर्म स्थान साडे वंडे गए। ऐसिया औखियां कठिनाइयां झल के इस स्थान पर आके जो राजनीतिक समाजिक खेत्र में उन्होंने पहचान बनाई, खास तौर पर उन्होंने सपुत्र साहब जविंदर सिंह होरां ने, प्रोफैसर साहब ने ते दूजे सपुत्र ने विदेशों में, धी राणियां ने विदेशों के जो सरकार ने मान बनाया उसे असीं मान कर सकते हैं, उसे फख्र कर सकते हैं। मैं केवल एक गल कह के माता जी के सपुत्रा दे विच जो एक विशेष गुण आ जिन्हों हर मां नूं हर बजुर्ग नूं अपने पुत्रां नूं सिखाउण दी लोड़ आ कि इन्ना कुछ होंदे होए भी धन दौलत भी आ, राजनीतिक अहुदेदारियां भी ने और सरकार आ हर पासे, सारा कुछ होने के बावजूद भी इस परिवार के विच जिहड़ी मिठास है, जिहड़ी निमरता है, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक रसूलपुर साहब ने जो शोभा सत्कार केवल अकाली दल दियां सभा करे नहीं बल्कि हर पार्टी दे विच हर खेत्र दे विच जो इस परिवार का नाम सत्कार बनया वो इन्हां दी हलीमी करके, इन्हां दी मिठास करके, इन्हां दी ईमानदारी करके, इन्हां दी वफादारी करके और इन्हां दी सिदकदिली करके। साथ भुलिया राठा जी बैठे ने जिले के प्रधान साडे मानयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल जी बैठे ने। पार्टी के विच भी कई चुनौतियां आउंदियां ने, पार्टी कई मुश्किलों से लंघदी आ, पार्टी नूं कई बार फैसले करने पैंदे ने, पर मैं कह सकदा कि रसूलपुर साहब ने हमेशा अडोल होके और वफादारी नाल हमेशा फैसले के पालन किया और पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा। कई बार भावें हक भी खोए जाते रहे पर कदे मान पे नहीं लाई, हमेशा पंथ की चढ़ती कला लई और पंथ की जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल की चढ़ती कला लई बुलंदियां के ले जाने लई सेवा करते रहे। तो ऐसी माँ जो अपनी संतान छड़ के गई आ उस माँ के सिर झुकदा और वो महान माँ नूं मैं अपने वालों शादा सत्कार के शब्द कह के फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्रीमान अरविंदर सिंह रसूलपुरी जी के माता जी को सत्कार सहित श्रद्धा के फुल भेंट करना आए और उचेचे तौर पर साडी पार्टी के प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब 2 मिनट मैंने कहा, मैं अद्धे मिनट 1.5 मिनट के पीछे जो आया सो चल सी सबको आई बारी, जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी, एक ना एक दिन सारे ने अपनी बारी सिर चले जाना। असी इस परिवार को धीरज देन आए हाँ। गुरबाणी कहती राणा राव न को रहे रंग न तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। धीरज कौन बने जब असी सारे ही लाइन च लगे हुए हैं तो धीरज कौन दवे। इदा का बाणी दे विच फरमान दिन रब चले निसस चले, तारे का लख पलोए, मुकाम ओही एक है नानक का सच भगोए। तारे भी चल रहे, चंद्रमा भी पैदा होया, सूरज भी पैदा होया और जेड़ा पैदा होया मरण लिखाए मंडल में आए। एक ना एक दिन सारे ने मुकाम वही है जिथे माता जीवन कौर जी गए, वो सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ मुकाम है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ बहुजन समाज पार्टी वालों अपने मैं परिवार वालों, क्योंकि मैं अरविंदर सिंह रसूलपुरी जी ਨੂੰ बहुत समय तो इन्हां दी मिठ बोलड़ापन, इन्हां दा पंथ के प्रति जिहड़ा उत्साह मैं इन्हां दे विच देखदा और पंथ दे नाल चलण दा जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ा उत्साह है वही सारिਆਂ ਨੂੰ उत्साह पैदा करदा। और मैं इस मौके पर माता जी को श्रद्धा के फुल अपनी पार्टी वालों अपने
परिवार वालों भेंट करता होया विदा लेंदा। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। ਜਦੋਂ मैं बैठा माता जीवन कौर जी बारे सोच रहा सी, मैं मिलिया तो कदे नहीं, पर मैं उन्होंने अंश उन्होंने खून में मिलिया। सरदार रविंदर सिंह सूरपुर साहब और उन्होंने पोतरे साथी कमलजीत सिंह जी को माता जीवन कौर जी दियां अगलियां 2 पीढ़ियां जो मैं मिलिया तो मैं बैठा अंदाजे लगा रहा सी माता जीवन कौर जी बारे भी किदां दी रहनी सहनी। दस के गए कि 30 साल की उम्र सी जो पाकिस्तान की वंड हुई, उजड़िया घर परिवार का नवा बूटा बापू सरदार चंदन सिंह जी और माता जीवन कौर जी ने मिलजुल के लाया और उस बूटे के उस बाग के 2 फुलों को मैं जो मिलिया सारा परिवार इहो जिहा ही होना। मैं उहदे तो बैठे मैं बैठा प्रोजेक्शन बनाता सी। जदों मैं माता जी बारे सोच रहा सी तो माता गुजर कौर भी मेरी अखां तो लंघी, जिस माता जी ने छोटे छोटे बच्चे 7 साल के 9 साल के और ठंडा बुर्ज मैनू याद है, माँ सी, दादी सी। मैनू माता गुजर कौर के नाल इतिहास दियां सारिया मावां याद आईयां जिन्हां दी अगलियां पीढ़ियां ने इतिहास बदलिया। वो इतिहास बदलिया जिस इतिहास दे विच देश कौम नूं जातां धर्मां विच वंडिया और कदे कदे उन्हां मावां दे जिहड़े अगलियां पीढ़ियां आईयां जिन्हां नूं गुरु साहिबान कहते आ, जिन्हां ने हज़ारां सालां दीयां किरतां कभी सरोवर बनाते, कभी लंगर लाते, एक पंगत बनाती, कभी एक बाटा रख दिता, कभी एक धर्म स्थान साझा बना दिता, कभी एक ग्रंथ बना दिता और वो जी अलख जगाई गई सभे संती बाल सदायन कोई न दिसे बारा जियो। जी अलख जगी इस देश की धरती से कि मानस की जाति सब के पहचान वो जी अलख जगाई गई कि जिहड़े देश के इन्हां जातां पातां धर्मां विच वंडे हुए लोग है, इन्हों भाईचारा पैदा करना सी, हाकम ने करना सी। ते उन्हां गुरुआं ने सानूं दस्सिया कि हाकम शेर बघियाड़ ते कुत्तियां वर्गा है। उन्हां हाकमां ने उन्हां गुरु साहिबानां ने सानूं दस्सिया कि हाकम बदले जाने चाहिए आ और गुरुआं ने सानूं दस्सिया कि ये कलगियां जिहड़ियां आ इन्हां गरीब सिखां दे सिरां ते सच्चे जदों असीं गुरुआं की लहर पढ़ते हैं, उन्हां गुरुआं की लहर दे विच एक जीवन जीवन का संकल्प आया कि मैं मरा पंथ जीवे, मैं मरा पंथ जीवे। अज असी सारे उस गुरुआं की सोच के प्रणाए हुए वो असी गुरु के सिख बैठे हैं, समुचा पंथ बैठा जिहड़ा हर अपने मन के अंदर भावना भर के बैठा मैं मरा पंथ जीवे। अज समा माता जीवन कौर जी की अंतिम अरदास है और मैं देख रहा सी कि क्या सरदार रसूलपुर साहब भी उसे समय तो लग रहे हैं। जब मैं पिछले दिनी दिल्ली लखनऊ गया तो 3-4 घंटे साड़ी गलबात साड़ी राष्ट्रीय नेता भैन कुमारी मायावती जी जिहड़े साहब श्री राम जी तो बाद अगवाई करते हैं, राजनीति गल्लां राजनीति वालियां ने करनियां होंदियां ना। मैं गल चलदी टांडे ते आई तो गल्लां चलदियां सी ते मैं उन्होंने मैंने पूछा कि उत्थे लीडर कौन है श्रोमणी अकाली दल दे। मैं मेरे को कोई नाम से मैं इन्हों भी मिलिया सी। मैं दस्सिया कि ये सरदार अरविंदर सिंह सूरपट्टी जिहड़े हल्का इंचार्ज है, वो कहते मैं टांडे 2-2 महीने 3 बारी रही हाँ। जदों 1980 तो लैके 1997 तक 96 तक मैं 3 शिफ्टां जिथे 2-2 महीने रही हाँ और 91 का इलैक्शन जो हुशियारपुर का लोक सभा का भैन कुमारी मायावती जी ने भी लड़ी, वो इस इलाके के चप्पे तो वाकफ। मैं दसिया कि सरदार रविंदर सिंह जी ने भी 2 बार तकड़ी तो इलैक्शन श्रोमणी अकाली दल तो और मैं बड़ी इस गल बड़ी मैं शिद्दत के नाल बड़ी
अकीदत के नाल रख रहे हैं कि भैन कुमारी मायावती जी ने भी अपना जिहड़ा सोच संदेश है इस परिवार के नाल साझा किया। उन्होंने भी कहा कि हिम्मत और हौसले के नाल इस लहर में, ये लहर जिस लहर ने सानू सिखाया मैं मरा पंथ जीवे, इस पंथ की चढ़ती कला के लिए बहुत सारिया साडे विच बहुत सारे कुर्बानी करने वाले लोग बैठे आ। अज उन्हां विच माता जीवन कौर का फरजंद सरदार अरविंदर सिंह सूद और पूरे पंथ को, पूरी कौम को, पूरे कट्ठ को इन्हां ते माण है और इन्हां दी अगवाई कर रहे सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, प्रधान श्रोमणी अकाली दल और साबका डिप्टी मुख्यमंत्री पंजाब। मैं देखना मैनू लगता सी कि श्रोमणी अकाली दल के लीडर वर्कर समय तो 2-2 घंटे बड़े लीडर लेट होंगे या हाई शाही सारा कुछ, पर नहीं, ये सारा कुछ ही मैनू मेरी पार्टी पता लग गया। ये सारा कुछ ही मैनू पत्रकार भी पूछना सी कि कितना का लग्या बिच घूमते फिरते हो, तो मैं कहा कि मैंने तो सारे PSP वाले लगते, मैंने तो सारे उदा नहीं लगते, क्योंकि असी सारे उन्होंने घर चो निकले हैं जिन्हें घर इस देश की मनुवादी और गंगूवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना। असी सारे वो लोग हैं जिहड़े किसानों और मजदूरों के परिवार चो आने आ। तारियां की छाएं सवेरे साडी सांझ शुरू होंदी आ ते तारियां की छाएं रात को खत्म नहीं होंदी, क्योंकि असी उदों भी पुछते होंगे कि बत्ती आ गई आ, उमर सिया हुण तेरा खेत ना लगा हो, ये सांझ रात को भी टुटदी। इस करके अज के दिन माता जीवन कौर को याद करते और मैं अंदर बैठा सी, मैं सरदार चंदन सिंह बापू जी की फोटो देख रहा सी और उस फोटों के इतना रश्क है, इन्ना फोटों के इन्ना अट्रैक्शन है, इन्ना खिंच है। ये परिवार सच्ची मुच्ची इस परिवार को मैं नमन करता जेडे इस अंदोलन में लगे हुए आ, जिहड़ा अंदोलन मैं मरा पथ जीवे की शिक्षा दिंदा। और धन है माता जीवन कौर जिन्हें अपने परिवार का, क्योंकि मैं एक परिवार के इको ही सरदार रविंदर सिंह जी को जानता जा उन्होंने बेटे सरदार कमलजीत सिंह जी जब मैं उन्होंने जानता कि दोनों लगे तो बाकी परिवार के मैनू इन्होंने वर्गा लगता। और मैं इस गल का भरोसा प्रगट करता गुरु साहब की हजूरी के हे माता जीवन कौर जिहड़े तुसीं इस पंथ नूं, इस अंदोलन नूं, इस युद्ध दे विच जिहड़ी हाकमां नाल टक्कर ले रहे जिहड़े तुसीं सानूं योद्धे दित्ते आ, असीं तुहाडा कोट प्रणाम करते हैं। इन्हां शब्दां नाल शुक्रिया, गज के बुलाइए फतेह। फिर 5वें पिता नूं याद करना तती तवी ते बैठा वो उड्डा बड़ा समा, उड्डा बड़ा औखा भारा समा अज आप याद करिए माता जीवन कौर को उस घटना के नाल उस साखी के नाल जोड़ के फतेह बुलंद करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। जो मेरे बादशाह ने फरमान जारी किया अंते सतगुरु बोलिया मैं पीछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़ियो कान जी। माता जीवन कौर जी की पवित्र याद में कथा कीर्तन गुरमति विचारों नाल जुड़ बैठी गुरु ग्रंथ साहब की गोद में प्यारी साध संगत जी। और सब तो पहले पातशाह नमस्कार करो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सारे बुलारिया ने बड़े प्यारे शब्दों के नाल सत्कार जो माता जीवन कौर जी ने शब्दों के फुल भेंट की। पंडाल में बहुत प्यारियां शख्सियत विराजमान हैं। स्पैशल तौर पर धन्यवाद करती हैं इस सारे दुआबे की धरती वालों मानयोग सिंह साहब, तरसी केसगढ़ साहब, ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, बहुत सत्कारयोग साढ़े श्रोमणी अकाली दल के निर्धारक जनरल कौमी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, साबका उप मुख्यमंत्री पंजाब जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रधान साहब सरदार जसवीर सिंह जी गढ़ी साहब, प्रोफैसर चंदू माजरा जी के बाकी सारिया शख्सियत इस जिले की बहुत बड़ी लीडरशिप इतने विराजमान है, सारिया संगत विराजमान। माता जी के जीवन के संबंध में बहुत कुछ किया गया पर अजे भी थोड़ा महसूस होता है, क्योंकि माँ की कुर्बानी को कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। माँ की देर को असी कोई लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जिस कुर्बानी के नाल माँ ने अपने बच्चों को पालिया पोसिया होता है, इत्थे तक पहुँचाया होंगे, जो माँ की घाट पैंदी है सचमुच ही हर बच्चा बहुत
बड़ी कमी महसूस करता तो इदा समझदा वो सिर के उत्तों अज बड़ा साया उठिया और पिठ के उत्तों परोसन वाली मां का हाथ उठ गया, क्योंकि कुदरत का असूल है जो उपजियो सो बिनस है पर वो आज के काल नानक हर गुण गाए ले शार सगले दिन जा। जो माता जी के संबंध कहा जा रहा है कि बड़े सहज वाले सन, बड़े सिद्धगली सन, बड़े संतोख वाले सन, बड़े निमरता वाले सन, बड़े मिठ बोलने सन। तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की तुक्का याद आई कि ਜਿਹੜੀਆਂ तुक्का इस सुहागन और पास सारे वास्ते बहुत वड्डियां वडमूलियां हैं कि चाहे उच्चो सुहागनी तुसी राविया कि नहीं गुणी, सहज संतोख सिगारिया मिठ बोले। ये सुहागन नाल तू किस ढंग नाल अपने पति को खुश किया, परमात्मा को खुश किया। उन्हें क्या सहज ते संतोख दे मैं कपड़े पहने, श्रृंगार किया, मिठा बोल के मैं अपने प्रभु को रिझाया, खुश किया, फिर किते जाके मैं प्रभु की बख्शिश रही। सो सारे गुण एक माता विच होने मैं समझी गुरु की बख्शिश के पात्र सन। ते अज माता की जो वडियाई नहीं की गल जिस गल समय को देख लो कि इस सिख इतिहास में जे सब तो पहला किसी ने रब की पहचान की है तो माता नानकी जी ने की, जो सिक्खी की फुलवारी को फिर किते जाके अंत में उस सिक्खी दी फुलवारी दी नीहां को मजबूत किया। ते माता गुजरी जी को याद किया जा रहा सी कि उन्हें किवें लोरियां दे दे के पाए हुए पुत्रां नूं नीहां चढ़वा के ते सच्चे पातशाह दे अगे अरदास की सी। सच्चे पातशाह शुक्र है तेरा कि जे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी निभाई सी, मैं अरदास की सी ते अज मैं भी निभा के सुरखरू होकर चली है। ये माता गुजरी जी की बहुत बड़ी वडियाई सी। सासंग जी इतिहास लंबे है, सिख कौम के धर्म सिख धर्म के पन्नियां नूं खोलिए तो सिख कौम में बहुत बड़िया कुर्बानियां मातावां ने कीतियां। पर रोजाना जिंदगी में असीं देखते हैं एक लड़की जिस परिवार जमती है, पलती है, गलियां खेलती है, माँ प्यो के लोरियां लेंदी है, फिर भरावां नाल लड़ती है, घुलती है, स्कूल में जेड़े पढ़ती है, छड्ड के अचानक ही जदों ओहदा समा हुंदा विआह दा जो छड्ड के एक जिन्हों जानदी भी नहीं अनजाने मनुख के नाल जेड़े सुभाਅ दा नहीं पता, जिस सोच का नहीं पता, जिसका रहन का नहीं पता, जिसके बोलन का नहीं पता, जिसके खान पीन का सुभाਅ का नहीं पता, उहदे नाल जाके लड़ लग के चली जाती है। छोटा त्याग है, औरत का बहुत बड़ा त्याग है। औरत ने हमेशा त्याग कमाया, कुर्बानी कमाई है और फिर जाके उस परिवार में अभेद हो जाना है। कितना भेद होती है जिससे एक आत्मा परमात्मा च भेद होती है, क्योंकि जब आत्मा के परमात्मा भेद हो जाए फिर समझ लो कि आत्मा के बख्शिश हो जाए। तो मैं लंबिया गल्लां ना करा, मानयोग प्रधान साहब जी ने बोलना है। कल ही मैं जब पूछा तुसीं जाओगे उत्थे, कहते कि मैं अपने परिवार में नहीं जाना है, जे मैं उन्होंने इन्होंने दुखा सुखे नहीं जाना तो मैं समझा कि मेरी बड़ी कुताही होगी। मैं अपने बच्चों अपने परिवार से अपने भैन भरा में जाके बैठता तो सदा प्रकाश से बादल की गुरती जी मैंने मिली है, मैं सभी का उदू मैं होर अगे बढ़ा रहा। मानयोग प्रधान साहब जी इस परिवार ने बड़ी सेवा की है पंथ और इस सारे परिवार में बड़ी बख्शिश है कि माता जी ने जन्म दिता, गुरती दी, पालिया पोसिया, असीसा दित्तियां ते अनथक मेहनत करके इन्होंने बाहरले देशों में भी अपना नाम बनाया। पूरा परिवार डॉक्टरी लाइन में भावे पोतरे है भावे पुत्र है, बड़ी बड़ी सेवा कमाई है। मैं इन्हें धन्यवाद करती हूँ। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सीट मानयोग प्रधान साहब जी ने समझौते की, अरविंदर सिंह रसूलपुर साहब जी ने फोन किया, कह लगे कोई गल बीबी जी साड़ी सरकार आनी चाहिए है, साड़ी तो नीली पग जो दफ्तर च बढ़ती है, अपनी सरकार हो तो दूरों सलूट बचते हैं, इस तो बड़ी सानू खुशी नहीं हो सकती। मानयोग प्रधान साहब जी ने जो फैसले किए हैं असी सिर वखे मना और हर वेले चढ़ के असी अगे हो गए। जसवीर सिंह जी गरी साहब तुसीं ना फिक्र करो, ये तुहाडी जिम्मेवारी घट है, लेकिन सरदार सुखबीर सिंह जी बादल दी जो सानू हदायत हैं असी दिल अदे करते गए, भावे कोई लखविंदर सिंह है, भावे कोई साबी है, भावे कोई रसूलपुर है, भावे सरदार सुखबीर सिंह भुल्ले रख है, ये सारी जो इतों जथेबंदी है एक एक तुहाडे 10-10 कदम अगे ला के असीं चलांगे और ये सीट केवल तुहाडी खातर नहीं पंथ की खातर और पंजाब की खातर उन्होंने धक्कियां के खिलाफ उन्होंने जुर्मों के खिलाफ उन्होंने लोगों ने जो इतने सादा खून चूसिया वो खिलाफ असी आवाज़ काम करके इस सरदार सुखबीर सिंह बादल की ताकत बढ़ाने वास्ते इतने पूरे मान सपाने इतने गल्लां करनियां शोभा
नहीं दिंदियां, पर मैनूं माण है कि उस परिवार च आए जिन्हें एक श्वास राजनीति में गुजारिया, एक श्वास पंथ में गुजारिया। महापुरखों का इन्होंने संग मिले, उन्होंने महापुरखों करके अज महापुरख हरिया बेलों वाले बैठे हैं, महापुरख रोंडी लाइया तो बाबा जी बैठे ने, साढ़े खुट्टा सर वाले बहुत सारे महापुरख बैठे हैं। ये सारी आशीर्वाद इसे करके है कि बीबी जी बड़े, माता जी बड़े सह सुभाव वाले सन, रब नूं प्यार करने वाले सन, बाणी नाल जुड़े सन। क्योंकि मैंने जो पिता चरण सिंह जी चढ़ाई की मैं उदों भी आई सन, उदों भी बहुत माता जी के चेहरे पर नूर और माता जी की इन्नी निमरता, उस वे मैं सोचती सा कि 100 साल की उम्र इस माता ने जी बतीत की है, सुकून है। इस वे सू अफसोस नहीं, भावें जान का घट है, लेकिन उन्होंने कीतियां हुई सेवावां, उन्होंने दी हुई प्रेरणा, उन्होंने दिता हुआ तजर्बा जिंदगी का वो हमेशा बच्चे ना रहेगा, साढ़े वास्ते एक बहुत प्रेरणा स्रोत होएगा। मैं सब का धन्यवाद करती हूँ। आओ सारे अरदास करके कि सबना सौरे बनना, सब मुकरावन हाथ, जो आया सो चलसी, सब कोई आई बारी है। ये सच्चे पातशाह तेरा हुक्म है, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। संगत साहा लिखिया मिलकर पावो ते देहो सज्जन आशीषणिया, जो होगा सारी सो मेल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बुला चुका माफी करी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मैं एक बेनती करा, सारा इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबना पत्रकारों का भी सत्कार करता है। तुसीं आए हो और सारे संत महापुरुष, असं चाहते सी सारे संत महापुरुषों बुलाते, पर फिर मैं बेनती करा राजनीतिक शिक्षिता बुलाते, पर समय की घाट है। मैं बड़े सत्कार के अंद नाल बेनती करांगा श्रोमणी गुरदुआरा कमेटी के मानयोग प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, वो अपने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल आपके दर्शन करेंगे जी। सो मैं धर्म की दुनिया में भी उन्होंने रह गया, सो माफी मांगदा ਉਹਦੇ ਲਈ मैं बेनती करांगा, क्योंकि दोनों ही गल्लां वधिया ने। श्रोमणी गुरदुआरा कमेटी भी साडी सरमौर जथेबंदी है और श्रोमणी अकाली दल भी साडी सरमौर जथेबंदी है। प्रधान साहब आपके दर्शन कर रहे हैं, माता जी को अपनी अकीदत ते श्रद्धा भेंट करेंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां पंजाब के कोने कोने तो माता जीवन कौर जी की अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते परमात्मा के चरणों च अरदास बेनतियां करने वास्ते इत्थे पहुंचे। सियाणे कहते हैं मावां ठंडियां छावां, माई है या पत्नी है जिहड़े घर नूं बंद के रखती है। घर के दरवाजे मैं देखा उदों तक खुले रहते हैं जो घर में या मां बैठी हो या पत्नी बैठी। आप खास करके श्रोमणी अकाली दल का जो इतिहास है, श्रोमणी अकाली दल ने जो संघर्ष किया है, 100 साल का इतिहास है। आप जो गल करते हैं वड्डी लीडरशिप के इस वर्करां की, उन्होंने कुर्बानियां की, जे वो वर्कर लीडर ने कुर्बानियां कीतियां, उस कुर्बानियां पिछे सब तो बड़ा योगदान उन्होंने धर्म पत्नी या उन्होंने माता ने करे। अज साहब प्रकाश सिंह जी बादल 5 बार मुख्यमंत्री बने, श्रोमणी अकाली दल की अगुवाई की, वो तां कर सके क्योंकि मेरी माता सुरेंद्र कौर बादल ने सारा कुछ कर पिछे संभालिया गया। जे एक इंसान को फिक्र हो अपने घर की, अपने परिवार का, घर को कट्ठे रखने का, वो इन्नी देर कुर्बानियां नहीं दे सकते, जेलों नहीं जा सकते, संघर्ष नहीं कर सकते। मैनू याद है जिन्ना मेरा जीवन सी, जो मैं पढ़ता सी, जो भी मैं स्कूल पढ़ता होंदा सी, होस्टल पढ़ता होंदा सी, जो 3 महीने की छुट्टी होंदा, ज़्यादा समय बादल साहब उदों जेल च ही होंदे सी। जे साडे घर नूं संभालिया, परिवार नूं इकट्ठा रखिया, बादल साहब ते केस होंदे, साडे परिवार ते केस होंदे, अदालतां जाना, वकीलां कोले जाना, सारा संघर्ष करना माता जी करते थे। तो इस करके जिहड़े खास करके मैं देखिए हर इंसान च
पर श्रोमणी अकाली दल के सियासत में हिस्ट्री में माता का तो घरवाली का बहुत बड़ा योगदान है। खास करके जो सियासी परिवार है, आम परिवार तो रोज बहुत एक बंदा मिलना होगा, 2 मल्ला मिलना होगा। जो सियासी परिवार जोड़े है कि 50 बंदे आ गए, कि 60 बंदे आ गए, कि 100 आ गए, लंगर देना, चाह का काम होना। आप तो नहीं बनाते, सारा कुछ तो पीछे सारा कुछ ऑटोमैटिक ही चली जाता है। जिन्हें आप अपना नाम कमाने सरदारी देखते हैं, सानू टौर मिलती है। जे आपू लंगर जाके करना पे फिर आप तो जो अपने पीछे सिस्टम है वो जी अपनी माता की घरवालियां वो चला रही है सारा सिस्टम। तो जो माता अपने विच नहीं, उस माता की शख्सियत बारे में तो पहले गल की 100 साल उम्र 100 साल जिन्होंने परमात्मा की बख्शिश होए उन्होंने जीवन 100 साल का मिलता है। अज तक 40 साल से लोग परमात्मा को जान लगे, 50 साल की उम्र जान लगे, 100 साल की उम्र उन्होंने परमात्मा भी बंदे मिलती है जिन्हें परमात्मा इन्नी लंबी उम्र बख्शते हैं। सो अज आप रसूलपुर परिवार की दुख की घड़ी आप कट्ठे हुए हैं। श्रोमणी अकाली दल भी परिवार है। श्रोमणी अकाली दल के मुखी के होने नाते मैं इस परिवार का मुखी मैं। सो हर परिवार के देखो कोने कोने तो अपने वर्कर आए हैं। मैं कल देखी है रिश्तेदार नालों भी जो बड़ा रिश्ता है पार्टी का परिवार का रिश्ता है। रिश्तेदार तो कितने कितने लड़ झगड़ के भज जाते हैं। जो पार्टी का परिवार है दुख सुख से हर बार नाल ही रहता होंगे। आप क्योंकि पार्टी में आप सुख भी देखा, दुख भी देखा, संघर्ष भी देखा, कट्ठे होकर आप हर लड़ाई लड़ी है। तो इस करके अज सारे इलाके का श्रोमणी अकाली दल का परिवार सारा इकट्ठा होया रसूलपुर साहब की दुख साझा करने वास्ते परमात्मा के चरणों च अरदास बेनती करता है कि माता जी को अपनी गोद स्थान दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। अज साढ़े सत्कारयोग माता जीवन कौर जी को श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते तुसीं सारे इत्थे पहुंचे हो। मैं जिथे सत्कारयोग सरदार रविंदर सिंह जी ते उन्होंने बड़े भाई डॉक्टर साहब के विदेश बैठे बड़े भाई डॉक्टर साहब के उन्होंने पोतरे ते समुचे कलारपुर वालों सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल जी का तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर जी ते संत बाबा निहाल सिंह जी हरियां मिला, संत बाबा तेजा सिंह जी तलवंडी राइयां वाले, संत बाबा हरदेव सिंह जी ते समुचे संत महापुरुष ते बहुजन समाज पार्टी के साडे प्रधान रघुवीर सिंह जी गढ़ी ते समुची इन्हां दी लीडरशिप ते साडे जिले दे और पंजाब के कोने कोने तो पहुंचे श्रोमणी अकाली दल के हजारों वीरों रिश्तेदार मित्र सज्जन अज दुख की घड़ी के कला परिवार के नाल तुसीं दुख साझा करने वास्ते पहुंचे हैं। खुशी बधाइयों बढ़ती आ, दुख बढ़ाया जरा वो घटता। अज तुसीं दुख बढ़ाने वास्ते कलाकार परिवार के नाल पहुंचे हैं ते मैं कलाकार परिवार वालों तुहाडा सारिआं दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा। जिथे कलाकार परिवार बारे सारे लीडर साहबान ने आख्या ये पंथक परिवार आ। मैनू 40 साल हो गए देखते नूं। इस परिवार ने हमेशा श्रोमणी अकाली दल की चढ़ती कला ने सेवावां निभाईआं। इस हल्के तो MLA बन के जाते रहे। इस घर दे विच बह के इलैक्शनां लड़ियां गईयां और बहुत बड़ी ताकत श्रोमणी अकाली दल नूं दित्ती आ। और जिथे साडे सत्कारयोग सरदार चरण सिंह जी 2 साल पहला इस संसार को कूच कर गए सन ते माता जी जीवन कौर जी कूच कर गए, जिहड़े नितनेमी सन हमेशा गुरु के नाल जुड़े रहना, बाणी का जाप करते रहना ते उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिते आ। अज उन्होंने परिवार उन्होंने बच्चे जिथे देश और विदेश के प्रफुल्लित ने, सिक्खी सकूत के प्रफुल्लित ने ते गुरु महाराज की बहुत बड़ी अपार कृपा आ। अज जिथे प्रधान साहब
ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। मैं फिर एक बार कलाक परिवार को थोड़ा धन्यवाद करता, उसे गुरु के चरणों की कामना करता। सच्चे पातशाह माता जी गुरमुख सन, गुरमुख जन्म सवार करके चलिया, सच्ची डर के जाए सच्चा फिर मलिया। जो महान आत्मा होया कर दियाँ अकाल पुरख गुरु स्वर्गों के वासा दिंदा। गुरु महाराज कृपा कर ये परिवार हमेशा चढ़दियां कला में रहे। तुसीं हमेशा इस परिवार को सीसा दिंदे रहो। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टोटी महला पंजवा। हार बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको कोट तुहारी। हार बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको कोट तुहारी। रहाओ बेन सिमरन जो जीवन बदना, सर्प जैसे अर जारी। नाव खंडन को राज कमावे, अंत चले गो हारी। गुण निधान गुण तिन्हि गाए, जाको कृपा तारी। सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। गुण निधान गुण तिन्हि गाए, जाको कृपा तारी। सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। वाहिगुरू जी का खालसा।